औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, Assalamu alaikum and good morning. Hope all of you will be fine. Before we start our lecture, let us start for a prayer in favor of Awais Khan, our brilliant second year student who is no more with us. God bless his soul with rest and peace. Ameen. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. अल्लाह ताला दागा वालिदैन ता सब्र जमील वर्की और दागा रूह ता तस्कीन नसीब की. आमीन सुम्मा आमीन. So today's lectures has been started with a little, but not with a little, with a disastrous sorrow. It's chapter number 5 of your first year text, that is about angular and circular motion. Lastly, we have studied about the basic concepts of circular motion. Today we are going to start from centripetal force, centripetal acceleration, and then we'll go to centripetal reaction, and after that banked curve or banking angle while constructing roads. प्यारे तुलबा, ये चैप्टर 5 जो कि एंगुलर मोशन और सर्कुलर मोशन पर मुश्तमिल है का टॉपिक है, और आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बैंकिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. As it is clear from the name centri, meaning they directed towards the center. Centripetal force, the force that compels a body to move along a circular path, is called centripetal force. This force is always directed towards the center of a circle. Centripetal force only changes the direction of motion, but not the magnitude of motion. This force is always perpendicular to the direction of motion, to the direction of tangential velocity. नाम से जाहिर है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा फोर्स है
जो कि किसी बॉडी को गोल दायरे में घूमने पे मजबूर करती हैं। ये फोर्स हमेशा दायरे की सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। इस फोर्स की खूबी ये है कि ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का या टेंजेंशियल वेलोसिटी का। यानी खूबियत ये हो गई कि ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है और ये परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का और ये डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल होता है। इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डिफिनीशन क्या है? The acceleration produced due to change in direction of linear motion only and is always directed towards the center of a circle is called centripetal acceleration. We have discussed about the acceleration. Acceleration is produced in a body either because of the change in magnitude of motion or direction of motion or change in both. Whenever there is a change in magnitude of linear velocity, linear acceleration is produced. Whenever there is a change in magnitude of angular velocity, angular acceleration is produced. When the angular velocity is either changing in magnitude or in direction, angular acceleration is produced. But when the direction of linear motion changes with time, then the acceleration produced is centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती हैं वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन की वजह से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन होती हैं और जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दायरे की सेंटर की तरफ होती है, सर्कल की सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन that is produced due to change in direction of linear motion and is always directed towards the center of a circle is called centripetal acceleration. And the force that produces this acceleration is called centripetal force. Force जो acceleration पैदा करती हैं इसको हम centripetal force कहते हैं। याद रखना, whenever a body is moving in a circle with a constant centripetal force, then there will be one acceleration and that acceleration will be centripetal acceleration. अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही है यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड से या उस पर कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स अमल कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगी और वो एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग along a circular path with constant linear speed, then the acceleration possessed by the body will be only and only centripetal acceleration. And whenever the body is moving with a variable speed in a circular path, there will be three types of acceleration in it. Centripetal acceleration because of change in direction, angular acceleration because of change in speed of angular motion,
and tangential acceleration. Tangential, A is equal to R alpha. So A and alpha are related. सिंपल बात यह हो गई कि जब भी कोई बॉडी गोल दायरे में घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से और एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह चेंज नहीं होते हो तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगी, उसमें वो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही हैं वेरिएबल स्पीड के साथ तो इस केस में इसमें 3 एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन. So these are the 3 types of acceleration. Now before we go to centripetal force, first of all we are going to derive a formula for the centripetal force. First of all we are going to derive a relation for centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल फोर्स पे जाने से पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। इसके लिए आप देखिए, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m is rotating about z axis with a uniform angular velocity omega is shown in figure 5.4 which is there. Particle of mass m is rotating about z axis with uniform angular velocity omega is shown over here. The tangential speed of a body v remains constant in v1 is equal to v2 is equal to v, but linear velocity changes due to direction of change of motion. This thing should be noted, meaning that the magnitude of velocity is constant but velocity is not constant. यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो वो 3 मीटर पर सेकंड लेगा, लेकिन चूंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो वेलोसिटी 2 चीज़ों से चेंज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन से और दूसरी डायरेक्शन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो उसका सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी बदली होगी, वही नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और डिफरेंट जगहों पे उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। सो जब भी कोई बॉडी दायरे में घूम रही हो विद यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो द चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बात इस पर डिस्कस करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल इस डायग्राम से क्लियर है। ये देखो, ये सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ क्या है, डायरेक्टेड है, हम करेंगे। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स 2। चूंकि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। इसके लिए आ जाए, लेट अस सपोज v1 is equal to velocity of a particle at point A at time t1 and v2 be the velocity of particle at point B at time t2। ये अगर आप देखें किसी लम्हे पर किसी पार्टिकल का, इस डायग्राम को ज़रा देखो, v1 जो है पॉइंट A पर क्या है, वेलोसिटी है, v2 जो है पॉइंट B पर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको कहते हैं। तो अब क्या आएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन डेल्टा t टाइम, इन डेल्टा t टाइम, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा d टाइम। ये देखो, ये देखो, ये डेल्टा v है, ये देख रहे हो, ये डेल्टा v है, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता।
ये देखो, ये आपके पास V1 है, क्या है V1, और ये क्या है, ये V2 है, क्या है V2, ये O पॉइंट है. Take any point O dash, see here, O dash outside the circle shown in figure B. O dash is taken outside. Draw V1 along the same direction, that is V1. Draw V2 along the same direction, that is V2. That is the given direction, meaning that whatever is the direction of V1, draw here a vector V1. Whatsoever is the direction of V2, draw vector V2 over here. क्या करो, आप इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट O डैश ले लो, ले लिया O डैश. O डैश पर V1 को ड्रा करो along the same direction A is shown over here at point A, तो ये V1 हो गया. इसी तरह V2 को ड्रा करो इधर, जो डायरेक्शन V2 का इधर शो कर दिया, तो ये V2 ड्रा हो गया. अब डेल्टा V क्या आएगा, यानी चूंकि इस आर्क पे डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहे हैं, A से लेकर B तक, ये DE जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि हम चेंज इन वेलोसिटी कंसिडर करेंगे A से लेकर B तक. हम चेंज इन वेलोसिटी कहाँ तक कंसिडर करेंगे, A से लेकर B तक. तो ये DE जो है वो आर्क AB के बराबर है, आर्क DE जो है वो आर्क AB के बराबर है, आर्क DE आर्क AB के बराबर है. तो ये चेंज जो आ रहा है डायरेक्शन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू डेल्टा V. याद रखना V1 का मैग्नीट्यूड बराबर है V2 के मैग्नीट्यूड के, तो ये बेसिकली R है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू R, जिसको आप कहते हैं, ये हो गया. अब ये डेल्टा V है. हमने ये कहा कि डेल्टा V सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है. कैसे, हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा होगा, हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा होगा. तो जनाब अगर आप देख लें तो वो कैसे, ये देखो V2 माइनस V1 आपने किया है, V2 माइनस V1. तो ये देखो V2 का डायरेक्शन क्या है, V2 का डायरेक्शन ये है ना, आपके पास ये दिखाई दे रहा है, तो ये V2 का डायरेक्शन हो गया, ये V2 का डायरेक्शन, ये एक वेक्टर V2 हो गया. माइनस V1 लफ्ज़ क्या है, अगर V1 ऊपर की जानिब है तो माइनस V1 नीचे की जानिब होगा. किस जानिब होगा, नीचे की जानिब होगा. तो आपने माइनस V1 का टेल V2 के हेड पे रखना है. देखो ये V1 हो गया, और माइनस V1 का टेल आपने रख दिया V2 के हेड पे, तो ये आ गया. तो अब डेल्टा V क्या आएगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, यानी ये आपके पास डेल्टा V आएगा, विच विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1. और ये डेल्टा V किस तरफ डायरेक्टेड है, डेल्टा V इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, डेल्टा V is directed towards the center of the circle. You used head to tail rule by drawing V2 along the same direction and minus V1, which is opposite to V1, and place the tail of minus V1 on the head of the V2. So the resultant will be from the tail of the first vector, which is V2, to the head of the last vector, which is minus V1. So that will be delta V, and that delta V is directed towards the center of a circle. That's why we say that centripetal acceleration is directed towards the center of a circle. देखो एक दफ़ा फिर देखो, ये पॉइंट A पर वेलोसिटी V1 है, पॉइंट B पर वेलोसिटी V2 है. आपने कोई पॉइंट सर्कल से बाहर ले लिया, O डैश ले लिया, O डैश ले लिया V1 पर, along the same direction आपने O डैश पे V1 का पैरेलल ड्रा कर दिया, और O डैश पर फिर V2 को ड्रा कर दिया, और चेंज इन वेलोसिटी जो आ गया वो क्या आ गया, ये डेल्टा V है जो कि आर्क DE के बराबर है, और ये आर्क DE आर्क AB के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन चेंज अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डायरेक्शन चेंज लेंगे, वो सेम होगा. फिर हमने कहा कि ये किस तरह सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो हमने ये कहा कि V2 जो है, V2 माइनस V1 है डेल्टा V, तो V2 को डायरेक्शन वही रहा जो पहले से था, ये देख रहे हो. और डेल्टा V1 का डायरेक्शन क्या है, अब था तो उसको माइनस V1 करने से नीचे आ जाएगा, तो माइनस V1 ये नीचे आ जाएगा. तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये कर रहे हैं कि V2 पर माइनस V1 का टेल रख दिया, एंड now the delta V is directed towards the center of a circle, so centripetal acceleration is directed towards the center of the circle. That's why we say that centripetal acceleration is towards the
center of a circle. So centripetal acceleration is directed towards the center of a circle. Now come to our point. So we have said that v1 is the velocity at v1 at a at time t1, and v2 is the velocity at time t2. v1 velocity is not equal to v2 velocity, but magnitude of v1 velocity is equal to magnitude of v2 velocity. So हमने फिर ये सारा जो बयान किया, अब देखो, to derive the relation for centripetal acceleration, take any point O dash outside the circle and draw O dash D parallel to V1 and O dash E parallel to V2. हमने यही बातें सारी की थी कि आपने O से बाहर O dash एक पॉइंट ले लिया और उस पर V1 का along डायरेक्शन ऑफ V1 आपने V1 ड्रा कर दिया, along डायरेक्शन ऑफ V2 ड्रा कर दिया, ताकि हम चेंज इन वेलोसिटी को निकाल सकें. ये देखो, द लेंथ ऑफ आर्क डी ई इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी. ये देखो, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क ए बी हैं और ये आर्क डी ई बराबर होंगे. वजह क्या है? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेंज इन डायरेक्शन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वही चेंज इन डायरेक्शन आना चाहिए, क्योंकि हम इस रीजन में अब कैलकुलेट कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन. तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा एस के बराबर हैं. यानी ये देखो, ये डेल्टा वी, ये जो चेंज आ रहे हैं तो इस आर्क के थ्रू आ रहे हैं, आर्क ए बी के थ्रू, और वो डेल्टा एस यानी आर्क ए बी दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एस. सो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू डेल्टा एस. आल्सो चेंज इन डायरेक्शन इज सेम इन बोथ सर्कल्स, द एंगल्स आर आल्सो इक्वल. जिस तरह मैंने कहा ना कि आर्क डी ई और आर्क ए बी बराबर होंगे ताकि चेंज इन डायरेक्शन इक्वल हो दोनों पे. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ डैश ई विच इज़ डेल थीटा. ये देखो, चूंकि आर्क ए बी और आर्क डी ई आपस में बराबर हैं, तो ये एंगल ए ओ बी बराबर होगी एंगल डी ओ डैश ई. सो दैट इज़ डेल थीटा. आल्सो हमें पता है कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v स्पीड, चूँकि हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, दैट इज कांस्टेंट. बाय ज्योमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स, हमने मैथमेटिक्स से पढ़ा है कि लेंथ, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी ऑफ वन सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस ओ ए ऑफ द सर्कल is equal to length of arc DE divided by radius OD of another circle. यानी हम this arc AB divided by this radius will be equal to arc DE divided by this radius. तो ये क्या आ जाएगा? Length of arc AB which we have taken delta S and radius of OA is R. So length of arc DE is delta V, and here we say that it is V because here you see that radius is basically V1 or V2, which are equal in magnitude. So here V is the magnitude of V1 and V2 which is equal. तो डेल्टा S by डेल्टा R आ जाएगा और ये डेल्टा V by V आ जाएगा. तो अब देखो, S जो होता है S इज इक्वल टू VT के बराबर होता है. ये कब बराबर होता है? जब स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है. तो जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं वो S इज इक्वल टू VT होगा. वी नो दैट डेल्टा S इज इक्वल टू V डेल्टा T. तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लो तो क्या आ जाएगा? V डेल्टा T बाई R और डेल्टा V डिवाइडेड बाई V आ जाएगा, जिसको अगर हम रीअरेंज करें, इस V को ऊपर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई करें तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे r और डेल्टा टी को डेल्टा v बाई डेल्टा टी. तो v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मीनिंग दैट ऑन रीअरेंजमेंट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v मल्टीप्लाइड बाई v इज v स्क्वायर. ब्रिंग डेल्टा टी ओवर हेयर डाउन. सो डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. As delta t is very smaller, thus limit delta t tends to 0, delta v by delta t, that is A instantaneous, which is equal to AC, which is equal to AC. So we have taken the limit. Why do we take? Because we say that so that the length of the arc is almost straight. So that the length
of the arc is almost straight, and we call it a displacement vector. We call it a displacement vector. So the less is the time duration, the straighter will be the length of the arc, that will be considered as linear displacement. So limit delta t tends to 0, delta v by delta t is equal to v square by r. Since v is constant and r is constant, so limit has nothing to do with that. So AC is equal to v square by r, and we know that v is equal to r omega. We know that v is equal to r omega. So r square omega square divided by r will give you r omega square, and omega is equal to 2 pi by t, so 2 pi by t whole square, and 1 by t is equal to f. So that is a different relation that can be utilized for the eta test. If you are given frequency r, then you can find centripetal acceleration. Also, if you are given time period, you can also find if you are given angular velocity, then. So the magnitude of the centripetal acceleration is A is equal to v square by r, or r omega square, r omega square. This instantaneous acceleration of a body rotating in a circle with a uniform speed directed toward the center of a circle is centripetal acceleration. It is a centripetal acceleration, और उसका magnitude जो है वो v square by r या r omega square के बराबर है. Victorially we can write AC is equal to minus v square by r unit vector, r unit vector. तो minus r omega square r unit vector, that is the vectorial form. Negative sign shows that this acceleration is directed inwards towards the center of a circle. याद रखना रेडियस का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव लिया जाता है. ये देखो O से A की तरफ अगर बाहर जाते हो तो वो पॉजिटिव लिया जाता है, बट इफ़ यू go inside then that will be taken as negative. चूंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू द सेंटर है, तो अगर पॉजिटिव वेक्टर आर यूनिट वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड है तो वापसी वाला होगा माइनस आर यूनिट वेक्टर. क्या होगा? माइनस. सो दैट्स वाई नेगेटिव साइन हैज़ बीन इंसर्टेड because it is directed towards the center of a circle. Now come to the centripetal force. As we have calculated centripetal acceleration, now we are going to find the centripetal force. Fc is equal to mac. Fc is equal to mac. Put the value of ac in that equation. M minus v square by r m minus r omega square. So Fc is equal to minus mv square by r unit vector is equal to minus mr omega square r unit vector. So that force is also directed towards the center of a circle, so it is negative. So this force is always perpendicular to the direction of motion. Centripetal force जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पे, कि एफ सी इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, अगर स्पीड को डबल कर दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 4. अगर 3 टाइम कर दिया जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स 9 टाइम हो जाएगा वगैरह वगैरह. और इसी तरह जो है बड़े दायरे में घूम रहे हैं स्मॉल, अगर बड़े दायरे में घूम रहे हैं तो ये कम होगा, अगर छोटे दायरे में घूम रहे हैं तो वो ज़्यादा होगा. इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये आपका जहन में नहीं आना चाहिए कि आर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. आर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि ओमेगा के अंदर भी आर मौजूद है. अगर हम उसको स्प्लिट अप कर दे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर कट जाएगा, आर फिर नीचे आ जाएगा. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मास, direct function of square of the linear speed and angular speed, inverse function of the radius of the circle. inverse function है. Centripetal force किसी खास force का नाम नहीं है. Centripetal force is not the name of any specified force, but it can be any force that compels a body to move along a circular path. सेंट्रीपिटल फोर्स किसी मखसूस फोर्स का नाम नहीं है. ये हर वो फोर्स हो सकती हैं जो कि बॉडी को गोल दायरे में घूमने पर मजबूर करती हैं. अब देखो, अगर मैं पत्थर को गिराऊं तो ग्रेविटी उसको क्या करती है? नीचे ले आती है. क्या करती है? ग्रेविटी उसको नीचे. तो ये सेंट्रीपिटल नहीं हो गया. लेकिन अगर मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन.
तो याद रखना कि सेंटीपीटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि गोल दायरे में घुमाती हैं, वो सेंटीपीटल फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ प्लानिटरी मोशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स plays the role of centripetal force because different planets are rotating around different things. Earth is revolving around the sun, moon is revolving around the earth. So in this particular case, gravitational force is centripetal force. Similarly, electrons revolve around a nucleus due to Coulomb's electrostatic force. So here Coulomb force is centripetal force. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है कूलम फोर्स की वजह से, तो कोलम्बिक फोर्स जो होता है दैट इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंटीपीटल फोर्स। इसी तरह अगर आप देखें, अगर चार्ज पार्टिकल हैं, इट इज़ प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल फॉलो ए सर्कुलर पाथ। इफ अ चार्ज पार्टिकल is projected into a uniform magnetic field, then it will follow a circular trajectory. In this case, magnetic field plays the role, magnetic force plays the role of centripetal force. तो बस बात ये हो गई कि सेंटीपीटल फोर्स कोई अपना फोर्स नहीं है, कोई यानी वेल जो नॉन फोर्सेस है उनमें से कोई नहीं है। यानी नॉन फोर्सेस में क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, ये तमाम जो है ये वेल नोन फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। तो ये उनमें नहीं, ये उन तमाम में से ये वेल नोन है, उनमें से कोई भी हो सकता है जो कि बॉडी को गोल दायरे में घूमने पर मजबूर करता है। इसी तरह अगर आप देखें, स्टोन टाइड टू अ रोप व्हेन व्रेल्ड इन अ सर्कुलर सर्कल या सर्कुलर ट्रैक, देन टेंशन प्लेज द रोल ऑफ सेंटीपीटल फोर्स। अगर एक पत्थर को दायरे में घुमाया जाए तो जो टेंशन फोर्स होता है वो जो है सेंटीपीटल फोर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। सो डिपेंडेंस ऑफ सेंटीपीटल फोर्स जो है, एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एफ सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर मैं कहूँगा, and Fc is directly proportional to mass. So that is about the centripetal force जो कि बॉडी को दायरे में घूमने पे मजबूर करती हैं। Now another thing is centripetal reaction or centrifugal force. The reaction of centripetal force is called centripetal reaction. It is equal but opposite in direction to the centripetal force. The force that is always equal to the magnitude of centripetal force at each instant but opposite in direction to it is called centripetal reaction. इसको हम क्या कहते हैं, सेंटीपीटल रिएक्शन कहते हैं। एफ आर इज इक्वल टू माइनस एफ सी, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम ए सी, दैट विल बी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, आर यूनिट वेक्टर। अगर सेंटीपीटल फोर्स इनवर्ड डायरेक्टेड है तो रिएक्शन उस तरफ होगा, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक का डायरेक्शन यू है माइनस, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो सेंटीपीटल force and centripetal reaction never balance each other as the action is from one body and reaction is from the other body. Centripetal force और centripetal reaction ये कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करते, क्योंकि एक्शन एक बॉडी की तरफ से होता है और रिएक्शन दूसरे बॉडी की तरफ से होता है। सेंट्रीपीटल रिएक्शन तब तक होता है जब तक सेंट्रीपीटल फोर्स है। जब सेंट्रीपीटल फोर्स ख़त्म हो जाता है तो सेंट्रीपीटल रिएक्शन भी ख़त्म हो जाती हैं। और बॉडी आप देखते हैं, जब दायरे में किसी चीज़ को घुमाते हैं, रस्सी टूट जाती है, तो बजाय गोल घूमने के वो सीधा निकलता है, टेंजेंशियल जाता है। अब इस पर चंद एक इंसिक्यूज है। द सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ए इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज क्वाड्रुपोल्ड, द परसेंटेज चेंज इन सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन इज। सवाल ये है कि सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का ए है, अगर स्पीड को 4 गुना कर दिया जाए, क्वाड्रुपोल्ड का मतलब है 4 गुना, तो उसमें जो परसेंटेज चेंज आती हैं वो कितनी होगी, ये ज़रा देख लें आप। ए सी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, के बाकी सारी जो चीज़ें एम वी स्क्वायर बाई आर है ना, तो हमारा जिसके साथ रिलेशन लेना होता है वो ले लो, बाकी को कांस्टेंट के ले लो। फर्ज करें ए सी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, ये के में बाकी एम और आर आता है सब, ये मैंने कहा से ए ले लो, यानी ए वी स्क्वायर भी ले सकते हो, के वी स्क्वायर, या सिर्फ ए सी फ़र्ज़ करें आप ले लो, वी स्क्वायर ले लो, सादगी के लिए, एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन के लिए, क्विक हल करने के लिए। तो अब
अगर आप देखिए वेलोसिटी को आपने क्या कर दिया, क्वाड्रपोल्ड कर दिया, 4 टाइम कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। अब अगर आपने वेलोसिटी को क्वाड्रपोल्ड कर दिया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 16 kv² आ जाएगा, दैट विल बी 16 kv²। अब ये 16 टाइम ए आ जाएगा, ये देखो थोड़ी सी गलती है जो मुझसे हो गई वो भी करेक्ट होती जाएगी, 16 टाइम्स ए हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, चेंज इन एक्सेलरेशन बाई एक्चुअल एक्सेलरेशन। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 टाइम आ जाएगा, 16 ए माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 16 ए ये आ जाएगा बेटा 1500 आ जाएगा, दैट विल बी 15। So I have corrected my MCQs, that is quadrupled, and what will be the percentage? Percentage क्या होता है, change in the quantity divided by actual quantity multiplied by 100%, change in the quantity multiplied by actual quantity multiplied by 100, change in the quantity divided by actual quantity multiplied by 100, that will give you the percentage. So that will be 1500%. So your answer will be कितना है, 1500% आ जाएगा, 1500% आ जाएगा। Now come, the centripetal force acting on a stone tied to a string of length 60 centimeter is 29. The centripetal force with the same parameter but string with a 30 centimeter will be. फर्स्ट देखो रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, कितना है 60 सेंटीमीटर। अब रेडियस को आपने कितना कर दिया, 30 सेंटीमीटर, यानी रेडियस को आधा कर दिया, सिंपल सिंपल करते जाओ इस तरह। तो सेंटीपीटल फोर्स क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर है, एम वी स्क्वेयर बाई आर। तो अब आर की जगह आप आर बाई 2 कर लो, क्या कर लो, आर बाई 2 कर लो, आर बाई 2। जब आपने आर बाई 2 कर लिया तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो सेंटीपीटल फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। तो क्या आ जाएगा, 40 डायन्स विल बी योर आंसर। 20 था, अब 40 हो जाएगा, यानी सर्कल का पहले रेडियस था 60 सेंटीमीटर, अब रेडियस क्या हो गया 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस आधा हो गया। जब रेडियस आधा हो गया, आपके पास इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू के बाई आर। मैंने कहा बाकी चीज़ों को के ले लो, ए ले लो, जो भी लेना चाहते हो, के बाई आर है। अब के बाई, अब जब 30 सेंटीमीटर तो आर आधा हो गया, आर बाई 2 हो गया, तो के डिवाइड बाई आई आर बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के बाई आर हो जाएगा, तो 2 एफ डैश विल बी 2f, एफ डैश विल बी 2f। तो एफ क्या है, 20 डायन्स है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 डायन्स, ये 40 डायन्स आ जाएगा। ये है आपके पास। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स ऑलवेज डज जीरो वर्क, कौन सा फोर्स है जो जीरो वर्क करता है। Gravitational force, no, sometime it is not doing zero work. Electric force, no, sometime it is also doing zero work, sometime it is doing zero work, sometime, for example, if electron is revolving around the sun, it is doing zero work, but not always zero. So third is centripetal force, yes, whoever is the centripetal force, that centripetal force may be gravitational, electric or magnetic, but if compels the body to move along a circular path will do zero work, so that is zero work. Now centripetal force and centripetal force and its reaction, meaning that centripetal reactions always balance each other, no, B, never balance each other, because action is from one body and reaction is from other body. So these were the few MCQs that were taught to you people, but you should be very much sharp and quick. So come now to banking of roads. You have seen that whenever there is a turning in roads, then the roads are banked. Banked mean they are given some angles. रोड्स को कुछ इंक्लिनेशन दी जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। चिक्कलप्पा सड़क बांधे रावान वे नो सड़क यूजुअली प्लेन टाइप थी, खो चिक्कल तासो टर्न कवे द सड़क दासी जोड़ कड़ी द वली जोड़ कड़ी वदे बांधे मुंगा उस खबर कवल वाड़ू। banked curved roads. If the road is banked so that the outer edge is above the inner edge, then the portion of the normal force from the road on the tires and air resistance points toward the center of the track. This fraction of normal force and resistance
can provide enough centripetal force to keep the car moving in a circle or vehicle moving in a circle. So whenever there is a turn, जब भी कोई टर्न होता है, ये देखो नॉर्मली ये रोड प्लेन होता है, दिस इज़ अ प्लेन वन, नॉर्मली ये होता है। लेकिन जब टर्न आता है तो रोड को यू बैंक किया जाता है, दैट इज़ बीइंग बैंक्ड। ये देखो ये एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है, कुछ एंगल, इसको बैंकिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग एंगल कहते हैं। अब देखो गाड़ी पे नॉर्मल फोर्स भी अमल करता है। जब टर्न होता है तो ये नॉर्मल फोर्स जो है दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक कंपोनेंट जो होता है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है और दूसरा कंपोनेंट वेट को क्या करता है? बैलेंस करता है। दूसरी चीज़ होती है टायर्स और रोड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है? एयर रेजिस्टेंस होती है। तो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड और एयर रेजिस्टेंस मिला के नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि गाड़ी को गोल दायरे में घूमने पे मजबूर करती है। सो whenever the road is being banked and the vehicle are moving across that banked road, so the part of the centripetal force, so the centripetal force will be the sum of a part of normal force, friction between the tire and the road, and air friction, air resistance. So हम कहते हैं but maximum part of centripetal force is provided by force of friction between the road and the tire. This has been properly shown in this diagram. ये देखो ये जो कर्व वो है, ये बेसिकली रोड यू टर्न हो रहा है और इसी तरह जो है ये रोड जो बनाया गया है उसकी ऊंचाई जो है हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है वो एंगल थीटा बनाती हैं, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बैंकिंग एंगल। नाउ कम एंड सी, दिस इज force is acting on that vehicle, that is mg downward, and the normal force you see is perpendicular to the surface, that which is that one. We resolve the normal force into component. You know theta का opposite क्या होगा? That is n sin theta होगा, n sin theta which is directed, ये देखो अगर हम इसको सारा सर्कल बना दें तो ये सर्कल की सेंटर की तरफ आता है क्या है? ये n sin theta और ये क्या होगा? n cos theta। तो n cos theta इसको बैलेंस कर रहा है और n sin theta इज इक्वल टू FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो टू फोर्सेस, ये देखो अब हमने ये सारा डायग्राम दिखा दिया। टू फोर्सेस एक्ट्स अपॉन द व्हीकल इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस विच आर वेट ऑफ व्हीकल एंड द नॉर्मल फोर्स n exerted by the road surface. Normal force कौन exert करता है? Road surface. Since the point of action of the two forces is not the same, so we resolve either of them into components. हम या तो वेट को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में या रिजॉल्व करते हैं नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट में। तो अगर आप देखिए यहाँ पर हम अलॉन्ग एक्स एक्स ये हम अगर हम एक्स एक्स लेते हैं तो सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा? एफ सी इज इक्वल टू एन साइन थीटा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व है और ये आ जाएगा एन साइन थीटा। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई जो है वो एम जी इज इक्वल टू एन कास थीटा आ जाएगा। एम जी इज इक्वल टू एन कास थीटा। नाउ इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 यू विल गेट एम वी स्क्वायर बाई आर और ये एम जी और यहाँ पर एन साइन थीटा है और यहाँ पर एन कास थीटा है। आपने इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो राइट को राइट साइड पे, इसको इस पे डिवाइड करो, हाँ, और इसको इस पे डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? एम वी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी, तो एन साइन थीटा डिवाइड बाई एन कास थीटा, एन एन विल टर्मिनेट, एन एन विल कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाई जी आर। देखो वी स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा, वी इज इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा, V is equal to GR.
g इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, r इज़ द रेडियस ऑफ द कर्व, जो कर्व बनाया गया रोड के लिए, और थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंड दैट इज़ द फार्मूला, आपने रोड पे देखा होगा स्पीड लिमिट, दैट इज़ द फार्मूला that gives the speed limit to the people awareness. Engineer has calculated the maximum speed, तो उससे लगभग स्पीड लगा लेते हैं कि ये जनाब आपका लिमिट है, सो डोंट गो बियॉन्ड दैट स्पीड, अदरवाइज यू विल मेट विद एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन अ सीरियस डिजास्टर। सो v इज इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा, तो जो वेलासिटी जी की वैल्यू पुट करो 9.8, फर्ज करें रेडियस ऑफ द कर्व 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर लगा दो, और थीटा जो उन्होंने दिया वो टेंजेंट 30 लगा दो, तो उससे आपके पास स्पीड आ जाएगा। तो वहाँ पर जो कर्व होता है वहाँ पर लिखा जाता है कि आपका स्पीड लिमिट जो है वो ये है, तो वो इसी फार्मूले से आता है। तो देखो मैंने कहा कि फ़िज़िक्स को सीखने की कोशिश करो कि वेयर वी आर यूजिंग प्रैक्टिकली। तो क्या होता है, ये जो स्पीड का तयन करते हैं किस पे करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। अगर आप मरी पे हैं तो कुछ यानी v इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, मरी पे g कम है तो स्पीड लिमिट कम रखना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह सी लेवल पे g की वैल्यू ज़्यादा है तो v क्या होती है, v अगर ज़्यादा रख दी जाए तो सेफ़ होगा सफ़र आपका। अब देखो v इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, कर्व की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो आप अगर मोड़ काटेंगे तो आपको ज़्यादा मतलब कि एक्सीडेंट की चांसेस कम होते हैं, और अगर कर्व छोटी होगी और उसी स्पीड से आप टर्न करना चाहें, तो हो सकता है कि आपका गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो जाए। तो ये जनाब आपके पास क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं जो कुछ काम के होते हैं। तो ट्राई योर बेस्ट नॉट टू मेमोराइज थिंग, see where we are using it in practical life, and I am telling you each and everything about that one in all of my lectures where we use it for daily use for in our daily life. So v is equal to gr tangent theta, knowing the banking angle theta, radius of curvature r of a road, the speed limit is indicated, speed limit आपको शो कर दिया गया होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि स्पीड लिमिट ये है। the speed limit MCQs देखो, द स्पीड लिमिट फॉर बैंक्ड रोड कर्वेचर ऑफ 2 किलोमीटर इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड लिमिट फॉर अनदर कर्वेचर ऑफ 8 किलोमीटर विल बी, यानी ऐसी रोड जो है जो 2 किलोमीटर कर्व का है उस पर स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर ये जो है ये क्या कर दिया जाए, अगर कर्वेचर 8 किलोमीटर का हो जाए तो स्पीड कितनी लिमिट आप रखेंगे। देखो आपको पता है v इज इक्वल टू जी आर टेंजेंट थीटा, ये देखिए ये 2 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर क्या है 4 टाइम्स ऑफ 2 किलोमीटर है ना, तो इसका मतलब कि रेडियस 4 टाइम्स हो गया, तो v डैश की आ जाएगा g और r की जगह 4r लगा दो टेंजेंट थीटा, तो 4 चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट से बाहर चला गया 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई जी आर टेंजेंट थीटा आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई जी आर टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो नई वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू 2v हो जाएगी, v डैश इज इक्वल टू 2v डबल, यानी अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर है तो ये क्या होगी 60 किलोमीटर पर आवर होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। यही बात जो है इसी तरीके से आपने फार्मूलों को यूटिलाइज़ करना है। सो नेक्स्ट पे आ जाओ, द स्पीड लिमिट फॉर रोड टर्न इज़ अ फंक्शन ऑफ, स्पीड लिमिट जो होते हैं जो रोड पे आप टर्न करते हैं किस पे, रोड कर्वेचर का फंक्शन होता है, बैंकिंग एंगल का होता है, सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट option. So that was about the centripetal acceleration, centripetal force, and then we have come to the banking angle, how speed limits are being specified on roads, roads पे speed limit को कैसे specify किया जाता है। अल्लाह हम सबको खुश रखे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फैला सकते हो शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ छोटी सी अच्छी सेहत की दुआ, अच्छे अखलाक की दुआ, खुशहाली की दुआ, मुतमईन होने की दुआ ये कीजिए। अल्लाह हाफिज़, आप लोगों का अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो।
Thank you very much.